وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی چین کے صدر شی جن پنگ سے بیجنگ میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات، اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور چین کی قیادت کا دونوں ملکوں کے درمیان قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم اور صدر شی جن پنگ کا اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کو چین کی کامیابیوں پر بہت فخر ہے، عظیم سفر میں چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں وزیر اعظم۔ چین اقتصادی ترقی کے تمام شعبوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ سی پیک دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے تحت پاکستان کے اہم ترین اقتصادی شعبوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ چین۔ وزیر اعظم کی روسی صدر ولادیمیر پوتن اور تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ وزیر اعظم سے چین کی کاروباری شخصیات کی ملاقاتیں بھی متوقع۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تیانجن سے بذریعہ بلٹ ٹرین بیجنگ آمد۔ ریلوے اسٹیشن پر وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال۔ محمد شہباز شریف عالمی فاشزم کے خلاف جنگ کی 80ویں سالگرہ کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کی چین کے وزیر اعظم اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ وزیر اعظم چین پاکستان بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ گلوبل گورننس انیشیٹو مضبوط کثیر الجہتی نظام کی طرف تاریخی قدم۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدر شی جن پنگ کے گلوبل گورننس انیشیٹو کے اجراء کے تاریخی اعلان کی تعریف۔ پاکستان کی حمایت کے عزم کا اظہار۔ اقدام چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دے گا۔ خطے میں امن اور خوشحالی کے مشترکہ مقصد کو فروغ ملے گا۔ عالمی قیادت کو ترقی پذیر ملکوں کا بوجھ بانٹنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ چین۔ عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں کی زینت۔ عرب نیوز، ڈیلی صبا، ترکی ٹوڈے، ہندوستان ٹائمز، CGTN، گلوبل ٹائمز اور ڈیلی جوگنتور سمیت مختلف ویب چینلز پر نمایاں کوریج۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کو پاکستان کے سفارتی اور معاشی مستقبل کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ چین پاکستان کی اقتصادی پالیسی میں اہم سنگ میل ہے۔ عالمی اخبارات کی شہ سرخیاں۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کا تیانجن میں ہوان شینگ نیو انرجی سولر پلانٹ اور جانوروں کی ویکسین تیار کرنے والی کمپنی کا دورہ۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعاون کے نئے مواقع کی تلاش کا جائزہ۔ پاکستان بھی جدید توانائی منصوبوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ زرعی شعبے میں چین کی مدد سے بائیو ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ سی پیک 2 کے ذریعے پاکستان کی بندرگاہوں، قابل تجدید توانائی اور لائف سٹاک شعبے کو مضبوط بنانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ احسن اقبال۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری سے قازق سفیر کی ملاقات۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کراچی اور گوادر بندرگاہوں پر مشترکہ منصوبوں کی تجویز زیر غور۔ گوادر فری زونز میں قازق سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستانی بندرگاہیں قازقستان کے لیے ٹرانزٹ ہب بننے کو تیار ہیں۔ وسطی ایشیا کو عالمی منڈیوں سے جوڑنے میں پاکستان کا اہم کردار متوقع۔ پاکستان کا ویژن خطے کا تجارتی و معاشی مرکز بننا ہے۔ جنید انوار چودھری۔ بھارتی سفارتی ناکامی بے نقاب۔ SCO اجلاس میں مودی کی تنہائی نمایاں۔ مصنوعی مسکراہٹیں ناکام۔ مودی کی باڈی لینگویج نے سب کچھ بتا دیا۔ چین اور روس سے تعلقات کا دکھاوا حقیقت بدل نہ سکا۔ سرحدی شکست اور معاشی دباؤ نے مودی کو جھکنے پر مجبور کیا۔ عالمی رہنماؤں کے ساتھ غیر پیشہ ورانہ رویہ بھارت کی سبکی کا سبب بنا۔ مودی کی جنگی پالیسیز نے بھارت کی عالمی ساکھ کو تباہ کر دیا۔ دنیا بھارتی بیانیوں کو اب سنجیدہ لینے کو تیار نہیں۔ مودی اور امت شاہ کی جوڑی کا سیاسی زوال واضح ہونے لگا۔ بہار انتخابات بی جے پی کے لیے بقا یا فنا کی جنگ بن چکے ہیں۔ 15 ریاستوں میں حکومت کے باوجود عوامی حمایت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔
CBI, ED और इनकम टैक्स इदारे सियासी इंतकाम का हथियार बन चुके हैं। चीफ जस्टिस को इंतखाबी पैनल से निकालना आईनी खुद मुख्तारी पर कारी ज़र्ब। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी की बुनियादें हिला दी। खारजा पॉलिसी की नाकामी ने भारत को आलमी वकार कमजोर कर दिया है। दवायर हेड तरीमों पर इस वक्त पानी का सबसे ज्यादा बहाव है। बारिश के बायस सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किलात का सामना होता है। सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआलजे की सहूलत की फराहमी तरजीह है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मनफी खबरों पर कान न धरें। सैलाब ज़दगान की इमदाद और रिलीफ के कामों पर सियासत समझ से बालातर है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सैलाब की सूरत हाल का जायजा और मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक है। दरियाए रावी हेड सधनाई के मकाम पर पानी का बहाव 1,17,000 क्यूसेक है। हेड सधनाई में सफूरा बंद को ब्रीच किया जा सकता है। हेड मोहम्मद वाला को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पंजनद में 5 सितंबर को अलीपुर के मकाम पर 6 लाख क्यूसेक का रैला पहुंचेगा। DGPDM में इरफान अली काठिया की सैलाब की सूरत हाल पर लाहौर में मीडिया को ब्रीफिंग। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। दरियाए चनाब में बड़ा सैलाबी रैला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। बालाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट है। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद। NDMA का 3 सितंबर तक मुतादिद इलाकों में सैलाब का अलर्ट। मुमकिना बारिशों के बायस मशरकी दरियाओं के बहाव में शदीद इजाफा मुतवक्के। दरियाए रावी से मुंसलिक नाला बई, बसंतर और डैक में तुग़यानी। दरियाए सतलुज में मजीद 3 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले का खदशा। मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब के मुआविन नालों जम्मू तवी और मुनव्वर तवी में शदीद तुग़यानी का खतरा। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे फाल। सैलाबी सूरत हाल में PTV न्यूज़ का मौसर किरदार। PTV न्यूज़ कौमी जिम्मेदारी निभाते हुए फ्रंट लाइन कवरेज दे रहा है। मुल्क भर से नुमाइंदे दरियाओं की सैलाबी सूरत हाल से बाखबर रख रहे हैं। बराह रास्त लम्हा बलम्हा रिपोर्ट्स फ्राहम की जा रही हैं। मुतासरा आवाम की आवाज़ मौसर अंदाज में हुकूमत तक पहुँचाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन और इंतजामिया की सरगर्मियों को उजागर किया जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में जिम्मेदाराना सहाफत के साथ PTV न्यूज़ पेश। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,50,709 की सतह तक पहुंच गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तौर पर मनाने के लिए तैयारियां उरूज पर। पैकर रुश्दो हिदायत खातमुन्नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर नजराना अकीदत पेश करने के लिए हम्दुनात और दुरूदो सलाम की रूह परवर महाफिल का इनेकाद। गली गली नगर नगर बरक़ी कुमकुम रोशन, सब्ज झंडियों से सजावट।
افغانستان میں 6 کی شدت کا ہولناک زلزلہ، 812 افراد جاں بحق، 3000 سے زیادہ زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ۔ کنڑ صوبے میں کئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا افغانستان میں جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی کو ٹیلی فون، افغان بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور مدد کی پیشکش۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، مزید 59 فلسطینی شہید، بھوک کی شدت سے 7 فلسطینی جاں بحق۔ شیخ رضوان میں امدادی مرکز کے قریب بمباری، خواتین اور بچے شہید۔ فلسطینی حکام کا عالمی برادری سے اسرائیلی رکاوٹیں ختم کرانے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ بیلجیم کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ، اسرائیل کے خلاف سخت پابندیوں کا اعلان۔ رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے۔ اسرائیل کے خلاف قومی سطح پر 12 سخت پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں۔ یہ اقدامات غزہ میں جاری انسانی المیے اور اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں کے جواب میں اٹھائے گئے ہیں۔ بیلجیم وزیر خارجہ میکسم بریوو۔ برطانیہ کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ، غزہ میں جنگ بندی نہ ہوئی تو رواں ماہ فلسطین کو تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیں گے۔ غزہ میں ہر گزرتا روز مزید تباہیاں لا رہا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ اسرائیلی حکومت غزہ میں ضروری امداد کی فراہمی سے مستقل انکاری ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا برطانوی پارلیمنٹ میں خطاب۔ یوم دفاع و شہداء کی مناسبت سے پشاور کے سکولز میں پروقار تقریبات کا انعقاد، پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی شرکت۔ بچوں نے پرچم کشائی اور ملکی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا میں حصہ لیا۔ ملی نغمے، ٹیبلوز اور تقاریر سے وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم۔ تقریبات کا اختتام پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں پر ہوا۔ 2 ستمبر 1965 جنگ کا دوسرا روز، بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کی پاکستان کو جنگ کی دھمکی۔ انڈین آرمی چیف جنرل جے این چودھری کی مقبوضہ کشمیر میں اعلیٰ فوجی افسران سے ملاقات۔ جی ایچ کیو کے تمام فارمیشنز کو کنسنٹریشن ایریا سنبھالنے کے احکامات۔ پاک فوج نے سونامرگ کے نزدیک بھارتی پلاٹون کا مکمل صفایا کر دیا۔ چھم میں 15 ٹینک قبضے میں لے کر 150 بھارتی فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا۔ جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا، پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ صدر ایوب کا قوم سے خطاب۔ فلم، ٹی وی اور سٹیج کے نامور اداکار انور علی لاہور میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج سپہر ماڈل ٹاؤن لاہور میں ادا کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری کا اظہار افسوس، صدر مملکت کی مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت اور صبر جمیل کی دعا۔ انور علی کا فنون لطیفہ میں کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تین ملکی T20 سیریز ایونٹ کے چوتھے میچ میں آج پاکستان اور افغانستان مد مقابل ہوں گے۔ مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست، افغانستان کے 2 پوائنٹس۔ پہلے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 39 رن سے ہرایا تھا۔ قومی کرکٹر آصف علی کا بین الاقوامی کرکٹ اور آسٹریلوی فاسٹ بالر میچل سٹارک کا T20 سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ ڈومیسٹک اور لیگ کرکٹ کھیلتا رہوں گا۔ آصف علی نے 21 ایک روزہ اور 58 T20 انٹرنیشنل میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ ٹیسٹ اور ون ڈے پر فوکس ہوگا۔ سٹارک نے آسٹریلیا کے لیے 65 T20 میچز میں 69 وکٹیں حاصل کی۔ رواں سال کے آخری گرینڈ سلیم یو ایس اوپن، دفاعی چیمپئن عالمی نمبر 1 اٹلی کے جینک سنر اور سربیا کے نوواک جوکووچ کی فتوحات کا سلسلہ جاری، کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ کینیڈا کے فلیکسو ایلیاسم اور اٹلی کے لورنزو میسیٹی نے بھی لاسٹ 8 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ یو ایس اوپن خواتین سنگلز، پولینڈ کی ایگا شویٹک کی کوارٹر فائنل میں رسائی۔ امریکہ کی کوکو گاف کا سفر تمام۔ جاپان کی ناؤمی اوساکا نے اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ امریکہ کی امندا نے بھی لاسٹ 8 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
जमहूरिया चेक की कैरोलिना मुचोवा ने यूक्रेन की मार्ता को हरा दिया। अमेरिकन मेजर्स बेसबॉल लीग, लॉस एंजल्स डॉजर्स की एरिजोना डायमंडबैग्स को शिकस्त, सीरीज क्लीन स्वीप होने से बचा ली। डॉजर्स ने डायमंडबैग्स को 4 के मुकाबले में 5 इनिंग्स से हराया। 3 मैचेस की सीरीज के पहले दोनों मैच एरिजोना डायमंडबैग्स ने जीते थे। इक्कीस मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा अस्पाना एक दिन के आराम के बाद 168 किलोमीटर का 10वां मरहला आज होगा। नॉर्वे के टास्टाइन ट्राइन को लीडर्स जर्सी और मजमूई बर्तरी बरकरार हासिल। अब तक के 9 मराहिल में से डेनमार्क के जोवेंस वेंगेगार्ड और बेल्जियम के जैस्पर ने 2 मुकाबले जीते। और 5 मराहिल पर मुश्तमिल ओशियन रेस यूरोप, फ्रांस में नाइस से इटली में गेनवा तक की चौथी लीग जारी। स्विस टीम हॉलिसम को बर्तरी हासिल। फ्रांस की टीम बायोथर्म और पेरिक क्या मामूली फर्क से दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद। ओशियन रेस यूरोप में शरीक 6 ममालिक से 7 मिक्स जेंडर टीम्स 4500 नॉटिकल माइल का सफर तय करके 21 सितंबर को मॉन्टेनेग्रो पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं इन्हीं खबरों की डिटेल्स की जानिब। सबसे पहले कुछ बात करते हैं वज़ीर आज़म के दौरा चीन और वहां पर उनकी मसरूफियात के हवाले से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीन के सदर शी जिनपिंग ने दोनों ममालिक की मजबूत तस्वीराती शराकतदारी को मजीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया है। मजीद बता रही हैं मरियम मलिक। पाक चीन दोस्ती समंदर से गहरी, हिमालय से बुलंद और शहद से ज्यादा शीरी। दोनों मुल्क हर मुश्किल में एक दूसरे के शाना बशाना। बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में होने वाली इंतहाई खुशगवार मुलाकात में दोनों मुल्कों की क़यादत ने 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने त्यांजन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी। उन्होंने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में जदीदियत और तरक्की की मनाजिल तय करने की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान को चीन की कामयाबियों पर बहुत फख्र है और इस अजीम सफर में मिलकर आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। उन्होंने सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अहम मंसूबे के तौर पर इक्तिसादी राहदारी की अहमियत का हामिल इक़दाम है। सी पैक अपग्रेडेशन के अगले मरहले में मजीद 5 रहदारियों का इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म ने उन इकदामात के कामयाब नफाज के लिए मिलकर काम जारी रखने की ख्वाहिश का इयादा करते हुए कहा कि इससे दोनों ममालिक को मुश्तरका मुस्तकबिल के साथ मजीद मजबूत पाकिस्तान चीन कम्युनिटी तश्कील देने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कसीरुल जहती तावन मजबूत बनाने के लिए सदर शी जिनपिंग के पुख्ता अज़्म को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इक़दामात इज्तिमाई आलमी फलाह के लिए जरूरी है और इलाकाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मुआवन साबित होंगे। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है और इसके तहत पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। पाकिस्तान और चीन की क़यादत ने इस बात पर इत्तफाक किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताउन जारी रखा जाएगा। इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि बेमिसाल और मुनफरिद ताल्लुकात की अक्कासी 2 तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने के जरिए होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को आइंदा साल पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत की तजदीद की। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की जड़ें दोनों मुल्कों के अवाम में हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान आला सतह रवाबित मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने और इस दोस्ती को परवान चढ़ाने के अज़्म के अक्कास है। पाकिस्तान और चीन के करीबी दोस्ताना ताल्लुकात इखलास और सच्चाई पर मबनी है और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इस दोस्ती को अपना कीमती असासा समझते हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान ममलिकत कौंसिल के 25वें इजलास में शिरकत के बाद तियानजिन से बजरिया बुलेट ट्रेन बीजिंग पहुंच गए। बीजिंग के जनूबी रेलवे स्टेशन पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी की रुकन वेंग होंग ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। बीजिंग में अपने क़याम के दौरान वज़ीर आज़म आलमी फाशिज़म के खिलाफ जंग की 80वीं सालगिरह की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे और खिताब करेंगे। 3 सितंबर को चीन के अवाम मज़ाहमती जंग की फतह की 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस हवाले से बीजिंग में एक यादगारी तकरीब होगी जिसमें चीन के सदर समेत 26 ममालिक के रहनुमा शरीक होंगे। तकरीब में चीन की मुसल्लह अफवाज मार्च पास्ट भी करेंगी। वकार हैदर इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। वकार हैदर, इस तकरीब की तैयारियों के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 सितंबर को चीनी अवाम की मज़ाहमती जंग की फतह की 80वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ये चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग के तियानजिन स्क्वायर पर एक तकरीब मुनक्किद की जाएगी जिसमें 26 के करीब गैर मुल्की मेहमान शरीक होंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग भी इस तकरीब में शरीक होंगे। मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस तकरीब में शरीक होंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी इस तकरीब में शरीक होंगे और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ साथ 26 ऐसे गैर मुल्की मेहमान हैं जो इस तकरीब में शरीक होंगे। मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि ये जो तकरीब है, इस तकरीब की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे फौजी परेड की जाएगी। जो मुसल्लह अफवाज के दस्ते हैं वो मार्च पास करेंगे। इसकी एक अहम वजह यह है कि चीन ऐसे हथियारों की नुमाइश करने जा रहे हैं सफा जो आज से पहले तक चीन ने इस दुनिया के सामने नहीं पेश की है। बड़ी तादाद में अवाम भी इस तकरीब में शिरकत करेगी। इस तकरीब की तमाम तर रिहर्सल मुकम्मल हो चुकी है और 3 सितंबर को ये तकरीब बीजिंग के तियानजिन स्क्वायर पर होगी जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत 26 गैर मुल्की रहनुमा शरीक होंगे। जी बहुत शुक्रिया वकार हैदर। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सीपैक के दूसरे मरहले के जरिए पाकिस्तान की बंदरगाहों, काबिल तजदीद तवानाई और लाइव स्टॉक शोबे को मजबूत बनाने के बेपनाह मौके मौजूद हैं। चीन के शहर तियानजिन में हुआनशेंग न्यू एनर्जी सोलर प्लांट के दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी जदीद तवानाई मंसूबों से फ़ायदा उठाएगा। ज़राई शोबे में चीन की मदद से बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में भी भरपूर ताउन को फ़रोग देंगे। उन्होंने कहा कि हम चीनी टेक्नोलॉजी और तजर्बे से भरपूर इस्तेफादे के लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। एहसन इकबाल ने चीन की जानवरों की वैक्सीन तैयार करने वाली बड़ी कंपनी का भी दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान में प्लांट लगाने की पेशकश करते हुए कहा कि पाकिस्तान में लाइव स्टॉक ज़राई मईशत का मजबूत सतून है। जानवरों को बीमारियों से पाक करके गोश्त की बरामदात बढ़ाना अहम हदफ है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी से काज़ाकिस्तान के सफ़ीर ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के तिजारती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। गवादर फ्री जोन्स में सरमायाकारी के इम्कानात भी ज़ेर गौर आए। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि कराची गवादर बंदरगाहों पर मुश्तरका मनसूबों की तजवीज़ है। पाकिस्तानी बंदरगाहें काज़ाकिस्तान के लिए ट्रांजिट हब बनने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बंदरगाहें वस्त एशिया को आलमी मंडियों से जोड़ेंगी। पाकिस्तान का हदफ खित्ते का तिजारती मरकज़ बनना है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों का ब्लू इकॉनमी में ताउन खित्ते में तरक्की की नई राहें खोलेगा। सफ़ीर ने पाकिस्तानी तजावीज़ का खैर मकदम करते हुए कहा कि काज़िक वज़ारती वफ़द जल्द पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान बरकरार है और 100 इंडेक्स इस वक्त 700 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,50,709 पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क के मौशी इशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। हुकूमत ने स्टेट बैंक को 26 खरब रुपए का कर्जा मुकर्ररा वक्त से पहले अदा करके साबित कर दिया है कि मुल्क मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के चीन के दौरे को भी सरमायाकार कदर की निगाह से देख रहे हैं। वज़ीर आज़म की चीन और रूस के सदूर के अलावा मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से मुलाकातों से आलमी सतह पर पाकिस्तान के उभरते हुए इमेज और अहमियत को जाहिर कर रहा है। यही वजह है कि गैर मुल्की सरमायाकार भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास ने भारतीय हुकूमत की सिफारती नाकामियां अयां करके रख दी। इजलास से वापसी पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की बॉडी लैंग्वेज ने सब कुछ कह दिया।
नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मायूसी, सिफारती तन्हाई और शिकस्त के आसार नुमायां नजर आए। इजलास के दौरान मसनूई मुस्कुराहटें भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी पर पर्दा डालने से कासिर रहीं। एससीओ के सरबराह इजलास के दौरान गैर पेशावराना रवैये ने मोदी की अहलियत पर भी सवालात उठा दिए। आलमी रहनुमाओं के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया भारत की सिफारती मायूसी को छुपाने की नाकाम कोशिशें हैं। एससीओ इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन और रूस के सदूर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ढोंग रचाते रहे। चीन और रूस के साथ दिखावे के मुसाफे और ताल्लुकात का मसनूई मुजाहरा ज़मीनी हक़ाइक़ को बदल नहीं सकता। मोदी अस्करी महाज पर शिकस्त और अमरीकी टैरिफ से बढ़ते मुआशी दबाव को छुपाने की नाकाम कोशिश करते रहे। सरहदी तनाज़े और भारतीय फौजियों की लाशें भारत और चीन के ताल्लुकात की हकीकत हैं। भारी अस्करी नुकसानात के बाद नरेंद्र मोदी चीन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हैं। मोदी की जंगी पॉलिसियां और दहशतगर्दी की सहूलतकारी ने भारत की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। दुनिया अब भारतीय हुकूमत के खोखले दावों और मुबालगा आमेज बयानात पर एतबार करने को तैयार नहीं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी सिफारती महाज पर हजीमत की अलामत बन चुके हैं। उधर मोदी और अमित शाह जोड़ी का जवाल शुरू हो गया है और बीजेपी की सल्तनत दरारों का शिकार हो गई है। मोदी सरकार के जवाल का आगाज बिहार इंतखाबात बीजेपी के लिए मौत या जिंदगी का इम्तिहान साबित होंगी। दवायर के मुताबिक बीजेपी 15 रियासतों में हुकूमत के बावजूद अवामी हिमायत तेजी से खो रही है। दवायर के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंतखाबी कमीशन की तकर्री कमेटी से निकालना मोदी सरकार का मुतनाज़ा कदम था। माजी के कांग्रेस सिस्टम के बरक्स मोदी एक खुद मुख्तार बीजेपी सिस्टम कायम करने में नाकाम रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर कंट्रोल के लिए कानून को बदला गया। चीफ जस्टिस की जगह वजीर को शामिल किया गया। इलेक्शन कमीशन के आला एहलकारों की तकर्री में हुकूमत का कंट्रोल आईनी आज़ादी को नुकसान पहुंचा रहा है। राहुल गांधी की निशानदही से SIR में इंतखाबी बेज़ाब्तियां मंजर आम पर आईं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने अवाम को जोड़ दिया। बीजेपी के मजबूत कले हिलने लगे हैं। मोदी का मेक इन इंडिया ग्रेट अगेन का नारा नाकाम हो चुका है और आलमी सतह पर भारत के असर रसूख में वाज़ेह तौर पर कमी आई है। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसीज नाकाम। चीन, अमरीका और पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात शदीद दबाव का शिकार है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और हालात कंट्रोल में हैं। उन्होंने कहा कि रिलीफ के कामों में बारिश की वजह से मुश्किलात हो रही हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कल झंग का दौरा किया, जहां उन्हें रिलीफ कैंप में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने इमदादी कामों का जायज़ा लिया और मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि WHO के मुताबिक सैलाबी इलाकों से पानी उतरने के बाद बीमारियां फैल सकती हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े उन्हें रेस्क्यू करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफरा तफरी दिखाई जा रही है और आवाम से अपील है कि सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन न करें। उन्होंने कहा कि लाहौर में कोई खैमा बस्ती नहीं, तमाम रिलीफ कैंप स्कूल्स में लगाए गए हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि लोगों को खाना तकसीम करने से रोका जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। इन्हें सिर्फ कहा गया है कि खाना तकसीम करने से पहले टेस्ट करवा लें ताकि सैलाब और बरसात के बायस फैलने वाली मुमकिन बीमारियों से बचा जा सके। अज़मा बुखारी ने कहा कि अब तक सैलाब के बायस 41 अमवात हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जहां से पानी निकल गया वहां नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है और वज़ीर आला मरियम नवाज़ जल्द मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के तमाम वसाइल सैलाब मुतासरीन के लिए हैं और वज़ीर आला ने कहा है कि मुस्तकबिल में हमें 80 डैम्स बनाना होंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो हमें मुस्तकबिल में भी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। DG PDM में इरफान अली काठिया ने PDM में ऑफिस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि भारत की तरफ से दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ा गया है, जिससे सतलुज और मुल्हिका नदी नालों में पानी की सतह बुलंद रहेगी। चिनाब से एक बड़ा रेला हेड तरीमू से मुल्तान पहुंचेगा और अगले 24 घंटे हेड संगनाई पर बहुत अहम है और पानी की सतह बढ़ने पर पीर महल और खानेवाल के इलाके भी मुतासर हो सकते हैं। आज रात मुल्तान में भी ज़्यादा खतरा है, जहां पर ज़िला इंतज़ामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इरफान अली काठिया ने बताया कि हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह बुलंद हो रही है और इसे हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सूरत हाल तशवीशनाक हुई तो 16 इलाके मुतासर हो सकते हैं। DG PDM ने बताया कि सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत के 2 डैमों से दरियाए सतलुज में पानी छोड़ा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि बारिशों की वजह से रेस्क्यू का काम मुतासर हो रहा है। अब तक की तफसीलात के मुताबिक 3200 देहात में 24 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर मुतासरीन को रिहाइश और खाना फ्राहम किया जा रहा है। DG PDM ने बताया कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 10 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जिसमें प्राइवेट इदारों ने भी अपना किरदार अदा किया।
NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में जारी बारिशों के बायस मुतादिद इलाकों के लिए सैलाब का अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बारिशों से मशरकी दरियाओं के बहाव में शदीद इजाफे का खदशा है। बारिशों से दरिया सतलुज में मौजूद 2,53,068 क्यूसेक का गैर मामूली बहाव 3 लाख क्यूसेक तक मुतवक्के है। दरिया रावी में चसड़ के मकाम पर इस वक्त 60,094 क्यूसेक के साथ बहाव नॉर्मल है। थेन डैम से पानी के अखराज और मुमकिन बारिशों के बायस चसड़ के मकाम पर दरिया रावी का बहाव 1,50,000 क्यूसेक तक मुतवक्के है। बालाई इलाकों में मुमकिन बारिशों के बाद दरिया रावी से मुंसलिक नाला बई, बसंतर और डेक में तूफ़ानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में बारिशों और बालाई डैम्स बशमूल सलाल, बगलिहार, डल से अखराज के बायस बहाव में शदीद इजाफा मुतवक्के है, जबकि दरिया चनाब में मराला के मकाम पर 94,728 क्यूसेक के साथ निचली सतह का बहाव जारी है। बालाई इलाकों में बारिशों और डैमों से अखराज शुदा पानी की आमद मराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का बायस बन सकती है। जम्मू तवी और मुनव्वर तवी समेत दरिया चनाब के मावन नालों बशमूल पलखों में शदीद तूफ़ान मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA तमाम रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी कर रहा है। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक दरबंगी में बदनी नाला का अखराज 16,142 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जो कि हाई लेवल सैलाब है। पेशावर के रिहायशी इलाके वर्सक रोड, दरबंगी और रेगी लारवा से आप आने का खदशा है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू और मकामी इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। नशेबी इलाकों के मकीनों को मकामी इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने, बिजली के खंभों और ज़ेर-ए-आब सड़कों से दूर रहने और नदी नालों को अबूर करने से गुरेज करने की हिदायत की गई हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुतासरा इलाकों में इमदादी राशन की तरसील जारी है। NDMA निजी शोबे और सरहदों के ताउन से पंजाब के 6 अजला के लिए इमदादी राशन की तरसील कर रहा है। आज चिन्यूट के लिए इमदादी राशन पर मुश्तमिल 8 ट्रकों का काफिला रवाना कर दिया गया। अशय खुरनोश के 22 आइटम पर मुश्तमिल एक राशन बैग का वजन 46 किलोग्राम है। NDMA नारवाल, सियालकोट, हाफिजाबाद और वजीराबाद में इमदादी सामान भिजवा चुका है। झंग के लिए भी इमदादी राशन की तरसील की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA मज़ीद इमदादी कोशिशों का सिलसिला जारी रखेगा। इस हवाले से मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़्म है और तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली पर पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। पेस्को के इलाके सवात, बुनेर, शांगला, सवाबी और DI खान के 12 ग्रेड्स और 91 फीडर्स मुतासर हुए। 85 फीडर्स मुकम्मल, 6 जुज़वी बहाल कर दिए गए हैं। गैपको के 10 ग्रेड्स और 87 मुतासरा फीडर्स में से 82 फीडर्स मुकम्मल, 5 जुज़वी बहाल। लेस्को के 62 मुतासरा फीडर्स में से 43 जुज़वी बहाल करके मुकम्मल बहाली 5 सितंबर तक होगी। फेस्को के 26 ग्रेड और 76 फीडर्स मुतासर हुए हैं। 72 फीडर्स आरजी बहाल। मैपको के 126 फीडर्स आरजी बहाल। पानी उतरते ही मुतासरा फीडर्स की मुकम्मल बहाली का काम होगा। शुमाली वज़ीरिस्तान और खैबर के 10 फीडर्स मुतासर, 1 फीडर मुकम्मल, 4 फीडर आरजी तौर पर बहाल। मानसहरा के 3 मुतासरा फीडर्स में से 2 मुकम्मल बहाल कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान से खबर शामिल करते हैं, जहां अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की तादाद 812 हो गई है, जबकि 3000 से ज़ायद जख्मी हैं। सिर्फ सुबह कुनर में 800 अफराद जाँ बहक हुए। नंगरहार और लुघमान में भी जानी नुकसान हुआ। अफगानिस्तान के अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि मकामी हुकाम और अवाम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। तमाम दस्तयाब वसाइल इंसानी जानें बचाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में आने वाले इस तबाहकुन ज़लज़ले पर दुख का इजहार करते हुए कहा है कि इनकी टीम्स मुतासरा इलाकों में काम कर रही हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ नंगरहार सूबे के शहर जलालाबाद से 27 किलोमीटर के फासले पर था और इसकी गहराई सिर्फ 8 किलोमीटर थी। गाज़ा शहर पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 13 अफराद शहीद, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। शहीद होने वालों में निस्फ़ से ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं। शहरी दिफा के तर्जुमान ने गैर मुल्की खबरसा इदारे को बताया कि फ़िज़ाई हमले में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें 10 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। एक और हमले में एक दूसरी रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया, जिसमें मज़ीद 3 अफराद शहीद हुए। दोनों इमारतें गज़ा शहर में ही वाक़ हैं। इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ भी गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमले किए थे, जिनमें 31 अफराद शहीद हो गए थे। इसराइल ने गज़ा के सबसे बड़े शहर पर बड़े पैमाने पर हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है।
बेल्जियम ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला करते हुए इसराइल के खिलाफ सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम ब्रियो ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा कि रवामा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। इसराइल के खिलाफ कौमी सतह पर 12 सख्त पाबंदियाँ नाफिज की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम गाज़ा में जारी इंसानी अलमी और इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के जवाब में उठाए गए हैं। बेल्जियन वज़ीर ख़ारजा ने वजाहत की है कि इसका मकसद इसराइली अवाम को सज़ा देना नहीं बल्कि ये यकीनी बनाना है कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी और इंसानी क़वानीन की पाबंद है। बरतानिया ने गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि गजा में जंगबंदी ना हुई तो रवामा फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर देंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने बरतानवी पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि अगर गजा में जंगबंदी पर कोई पेशरफ न हुई तो बरतानिया रवामा होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान करेगा। उन्होंने कहा कि गजा में हर गुजरता रोज़ मज़ीद तबाहियाँ ला रहा है। खुराक की कमी से गजा के 5 साल से कम उम्र 1,32,000 से ज़ायद बच्चों को जान का खतरा है। इजरायली हुकूमत गजा में ज़रूरी इमदाद की फ्राहमी का इससे मुस्तकिल इनकारी है। उन्होंने कहा कि गजा में जारी कहत कुदरती नहीं, ये 21वीं सदी में इंसान का बनाया हुआ कहत है। उन्होंने मुतालबा किया कि गजा में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोकी जाएँ। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि गजा की सूरत हाल बेहतर बनाने का वाहिद हल फौरी और बिला मशरूत जंगबंदी है। 2 सितंबर 1965 जंग का दूसरा रोज भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को जंग की धमकी दी, मगर साथ ही ये एतराफ़ भी किया कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी अफवाद ने 4 भारतीय तैयारों को मार गिराया। भारतीय आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी ने मकबूजा कश्मीर में आला फौजी अफसरान से मुलाकात की। दूसरी जानिब सदर अयूब ने कौम से खिताब में तंबीह की कि भारत ने इब्तदाई से पाकिस्तान और कश्मीर के मुतालिक अपनी पॉलिसी की बुनियाद नफरत और दुश्मनी पर रखी है। सरदार अब्दुल क़य्यूम ने भारत को खबरदार किया कि भारतीय अफवाज अपनी कब्र में उतर आई हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन ने भारत की तरफ से फ़ज़ाई क़ुव्वत इस्तेमाल करने पर नहायत अफसोस का इजहार किया। तमाम फॉर्मेशंस को वार्निंग ऑर्डर जारी कर दिए कि भारतीय अफवाज की बढ़ती हुई जंगी तैयारियों के पेश नज़र 2 सितंबर की सुबह तक पोजीशन संभाल लें। कश्मीर के महाज पर पाक फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर के इलाके सोनामर्ग के नज़दीक एक भारतीय प्लाटून का मुकम्मल सफाया करते हुए भारतीय अफवाज के ठिकान और तनसीबात पर हमले जारी रखे। पाकिस्तानी अफवाज ने छम में मशरिक की जानिब पेशकदमी करते हुए 15 टैंक कब्जे में लिए और 150 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बना लिया। मार्का हक के हीरो हवालदार फलकनाज ने अपनी बेमिसाल कुर्बानी और शुजाअत से एक नई और रोशन तारीख रकम की। पाक फौज के शेर दिल जवान को उनकी शुजाअत के एतराफ़ में तमग़े बसालत से नवाजा गया। हवालदार फलकनाज ने पाकिस्तानी कौम को पैगाम देते हुए कहा कि जब तक आप पाक फौज के साथ हैं, हमारे हौसले बुलंद और गैर मुतज़लज़ल रहेंगे। मैं हवलदार फलकनाज 70 रेजिमेंट, जब 10 मई को दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला कर दिया और हमारे अमीन पोस्ट पे फिजिकल रेट का खतरा था, तो उस टाइम पे मैं सिट कमांडर था। मुझे ऑर्डर मिल गया कि आप अपने सिट टीम को अमीन पोस्ट पे ले जाए और दुश्मन का फिजिकल रेट पसपा करे। तो इसी असना में जब हम रास्ते पे थे तो दुश्मन का एक मॉर्टर का गोला आके गिरा हमारे करीब, जिसकी वजह से मेरे हाथ पे चोट लग गए। चोट के बावजूद भी हम जाके दुश्मन का फिजिकल रेट को नाकाम बना दिया। और मैं अपने पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग पाक फौज के साथ हो, हमारे हौसले बुलंद है और हम अपनी जानों की कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। और पाक फौज सीसा पिलाई दीवार बनकर अपने कौम के आगे खड़ी रही। पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम दिफा शोहदा की मुनासबत से पेशावर के मुख्तलिफ स्कूल्स में तकारीब का इनेकाद किया गया। इन तकारीब में पाक फौज के अफसरान और जवानों ने शिरकत करके बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने पाक फौज के साथ मिलकर परचम कुशाई की और मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआएं की। तलबा और तालिबात ने मिली जज्बे से भरपूर नग़मे और खूबसूरत टैबलोज पेश किए। तालिबा की खूबसूरत परफॉर्मेंस, हुब्बुल वतनी और तख्लीकी सलाहियतों को सराहा गया। तकरीबात में इख्तिताम नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात की तकसीम और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिकाफ नारों के साथ हुआ।
گورنر بلوچستان اور چانسلر جعفر بنوخیل کی صدارت میں بیوٹمز یوب کیمپس کا جائزہ اجلاس کوئٹہ میں ہوا۔ یونیورسٹی میں اکیڈمک بلاک، سپورٹس کمپلیکس، گیسٹ ہاؤس اور ہاسٹل کی تعمیراتی پروجیکٹس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ گورنر نے یوب ڈویژن کے تعلیمی اداروں میں طلباء کی تعداد اور مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام منصوبے بروقت اور معیار کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پریس کلب کے سامنے بیٹی کے علاج کے لیے مدد کی اپیل کرنے والے والد کے فریاد سن لی۔ میر سرفراز بکی نے بیمار بچی اور والد کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ مدعو کیا اور ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے بچی کے علاج کے لیے مالی امداد بھی دی۔ اس موقع پر بیمار بچی کے والدین نے میر سرفراز بکی سے اظہار تشکر کیا۔ وزیر مملکت ملک رشید احمد خان کے بڑے بھائی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے ماموں حاجی حنیف خان کی نماز جنازہ فتح پور قصور میں ادا کر دی گئی۔ مرحوم طویل علالت کے بعد کل انتقال کر گئے تھے۔ مرحوم ایم پی اے ملک احمد سعید خان اور ملک احمد رئیس خان کے والد تھے۔ نماز جنازہ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، سابق اسپیکر رانا محمد اقبال، اراکین صوبائی اسمبلی، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں، پنجاب اسمبلی کے اعلیٰ عہدیداروں، سول افسران، جنرل مینیجر پی ٹی وی لاہور مرکز ڈاکٹر کیسر شریف اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہت کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ الہام جامع عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور 1500ویں یوم ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سینٹرل جیل ہری پور میں روح پرور محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں قیدیوں، جیل عملے اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ معروف مذہبی اسکالر مولانا احمد جمشید خان نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور اخلاق حسنہ کو انسانیت کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل محمد حامد اعظم اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اختر حسین شاہ نے محفل کو قیدیوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے مفید قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر اجتماعی دعا کی گئی اور قیدیوں کے لیے خصوصی لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ قیدیوں نے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مستقبل میں مزید ایسی محافل کی خواہش ظاہر کی۔ لکی مروت میں ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام 50ویں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء اور علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں لکی مروت سے نمائندہ پی ٹی وی نیوز انور زیب مروت کی یہ رپورٹ۔ آقائے دو جہان سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500ویں جشن ولادت کی خوشی میں منعقد ہونے والی سیرت النبی کانفرنس میں ڈپٹی کمشنر لکی مروت حمید اللہ سمیت مختلف سکولوں کے طلباء، علماء کرام اور سرکاری ملازمین نے شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء نے حسن قرت اور نعت خوانی کے ذریعے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت کے پھول نچاور کیے۔ آج ہم نے یہ ایک پروگرام منعقد کیا جس میں نعت خوانی اور حسن قرات کے بھی پروگرامات ہوئے۔ اس کے علاوہ یہاں ہم نے جتنے لکی مروت کے علماء کرام تھے ان کو مدعو کیا تھا جو کہ آئے ہیں اور انہوں نے سیرت النبی کے حوالے سے لب کشائی کی ہے۔ کانفرنس سے خطاب میں علماء کرام نے نوجوان نسل کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہری اصولوں سے روشناس کرانے کو وقت کی اہم ضرورت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو موجودہ دور میں مشعل راہ قرار دیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر طلباء اور علماء کرام میں تعریفی سرٹیفکیٹس اور شیلڈز بھی تقسیم کیے۔ ملک بھر میں وفاقی حکومت کی ہدایات کی روشنی میں 50ویں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد نبی کریم سے محبت کے اظہار کا ذریعہ بنے گی اور طلباء کو ان کی تعلیمات سے سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ انور زیب مروت، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لکی مروت۔ نہیں ہوتا، نہ لے کے گیا ہے نہ لے کے جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ صاف ہونا چاہیے، اس لیے کہ بغض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اپنی انا کی خاطر، اپنے آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری
भैंस ज़िबा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये बातें, ये अवाम की नुमाइंदगी, ये अपने लोगों की नुमाइंदगी इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगी। जो हक होगा, सच होगा, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हक और सच से नहीं डरे और 25 साल कैद को अपने गले से लगाकर कैद में गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बस हो गया। अब सिर्फ एक पार्टी को तो नहीं दे सकते ना, दूसरे भी बैठे हैं। अबाई साहब प्लीज, आप डबल बोल चुके हैं, 5 मिनट की जगह 10 मिनट बोले। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कौमी असम्बली में अब से कुछ ही लम्हात पहले इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम की नुमाइंदगी का सिलसिला जारी रखेंगे, कौमी नौयत के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उसकी ज़मीन पे कब्जा करे, जिसकी इज्जत पे हाथ डाले नहीं। ताकतवर वो होता है जो अपनी जान, माल और इज्जत की हिफाजत करता है और जो अपने मुल्क की हिफाजत करता है। आज दुनिया के अंदर उसी को एक्नॉलेज किया जाता है, मुआशरे में उसी को एक्नॉलेज किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मेरे शाहीनों ने, और मैं एयर चीफ को खराज तहसीन पेश किए बगैर रह नहीं सकता, और उन्होंने जिस तरीके से इस पाकिस्तान की जंग को लड़ा है और मेरे शाहीनों ने जो किरदार अदा किया है, वो शायद रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह ताला उसका पूरे तरीके से परवान चढ़ता रहेगा और नाम रहेगा उन मेरे शाहीनों का और उन शोहदा का जिन्होंने LOC के बॉर्डर के ऊपर अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज दुनिया आपकी इज्जत क्यों कर रही है? अरबों डॉलर की वजह से नहीं। वो लीबिया के पास भी थे, वो शाम के पास भी थे, वो इराक के पास भी थे, लेकिन उसके दफाई निज़ाम को हिट किया गया और लोग आज मरूने मिन्नत हैं। एक वक्त की रोटी के, एक वक्त के खाने के अरबोपति जो लोग थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पाकिस्तान की जिस तरीके से हिफाजत की गई है, हमें फ़ख्र है, हमारी आने वाली नस्लों को भी फ़ख्र होगा और अल्लाह ताला के फजल व करम से इस पाकिस्तान का नाम रहती दुनिया तक, क़यामत तक कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान का नाम रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। आज दुनिया हमारी इज्जत इसलिए कर रही है कि हमने अपने मुल्क की हिफाजत की और जंग जीती। ये कहना था वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का, जो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे।
ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ پشاور اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش کے باعث معمولات زندگی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور کئی سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگیں، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے دفاتر، اسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں جانے والے افراد کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ترجمان ٹرانس پشاور نے جاری بیان میں کہا کہ شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر BRT سروس اگلی اطلاع تک مکمل طور پر بند رہے گی۔ جیسے ہی موسم بہتر ہوگا اور سڑکیں محفوظ قرار دی جائیں گی، سروس بحال کر دی جائے گی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گھروں، دکانوں اور پلازوں کے اندر پانی داخل ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ نکاسی آب کا نظام بارش کی شدت کے سامنے مکمل ناکام دکھائی دیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ حکومت پنجاب مشکل وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیلاب متاثرین کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ خانے وال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبائی وزیر روزانہ کی بنیاد پر مختلف متاثرہ اضلاع میں جا کر سیلابی صورتحال اور ریسکیو آپریشن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ متاثرین کو کھانا، صاف پانی اور ادویات کی فراہمی جاری ہے۔ اور ملتان میں دریائے چناب کا سیلابی ریلا آج شام ہیڈ محمد والا پہنچنے کا امکان ہے۔ اس وقت گیج کی سطح 408 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ کمشنر عامر کریم خان کے مطابق صورتحال پر مکمل نظر رکھی جا رہی ہے۔ ہیڈ محمد والا پر ٹریفک بند کر دی گئی ہے۔ بات کرتے ہیں ملتان میں موجود ہمارے نمائندے فرحان مرزا سے۔ جی فرحان مرزا، آگاہ کیجیے گا۔ دریائے چناب میں سیلابی صورتحال بدستور موجود ہے، جبکہ ہیڈ تریمو پر پانی کا اخراج سست ہے۔ ضلع انتظامیہ ملتان کے مطابق سیلابی ریلا آج شام ہیڈ محمد والا کے مقام پر پہنچنے کے امکانات ہیں۔ ہیڈ محمد والا کی اگر میں بات کروں تو یہاں محکمہ آبپاشی کی جانب سے نصب کیے گئے گیج کے مطابق پانی کی سطح 408 فٹ بلند ہے، جبکہ اس کی نازک سطح 417 فٹ ہے۔ جب یہ سطح 417 فٹ تک پہنچے گی تو اس کے لیے ایکشن کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سیلابی ریلے کی رفتار، شدت اور دیگر عوامل کو دیکھ کر ٹیکنیکل کمیٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کو یہاں سے بریچ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ ملتان ڈویژن میں 5.5 لاکھ سے زائد افراد کو سیلابی علاقوں سے نکالا گیا ہے، جبکہ اسی طرح 5 لاکھ مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ 80 سے زائد جو ہیں وہ ریلیف کیمپس بنائے گئے ہیں، جہاں پر متاثرین کے لیے قیام و طعام کی تمام سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ اس طرح وہاں پر میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر ویکسینیشن اور تمام قسم کی ادویات موجود ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس سیلابی صورتحال میں ندی نالوں سے دور رہیں اور خاص طور پر بجلی کی تنصیبات سے بھی دور رہا جائے اور غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے۔ جی سسٹم ہے، ان سب کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے فوری طور پہ انتظامات کے لیے اور آئندہ منصوبہ بندی کے لیے تجاویز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں۔ تو میں تمام ممبران کو مختصراً یہ عرض کر دوں کہ اس وقت حکومت موجودہ صورتحال سے غافل نہیں ہے، بلکہ تمام ہاؤس کے تمام ممبران کی تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے جامع قسم کے منصوبے بنائے جائیں گے تاکہ کل کو ایسے کسی منصوبے پہ کوئی اعتراض نہ کیا جا سکے، جس میں ٹیلی میٹرنگ کا سسٹم بھی ہے اور باقی تمام منصوبہ جات ہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تمام ممبران کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ موجودہ حکومت اس صورتحال سے پوری طرح آگاہ بھی ہے، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے، فصلات کا نقصان ہوا ہے، اس کے لیے بھی سروے جاری ہے، اور جن لوگوں کے مکانات کا نقصان ہوا ہے اس کا بھی سروے جاری ہے۔ حکومت انشاءاللہ تعالی جتنے بھی متاثرین ہیں ان کے لیے کمپنسیشن کے بارے میں بھی تمام جو ایسٹیمیٹ بھی لگوا رہی ہے، اور ان کی انشاءاللہ تعالی کمپنسیشن بھی کی جائے گی۔ تھینک یو سر۔ شکریہ۔ کمپنسیشن کی جائے گی، فصلوں مکانات کے نقصانات کا سروے جاری ہے۔ ملک بھر میں اس وقت ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ وزیر آبی وسائل میاں معین بٹو قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
तीन मुल्की T20 सीरीज के चौथे मैच में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे। शारजा में होने वाला मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 4 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं। पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हराया था। तीन मुल्की सीरीज के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 38 रन से हरा दिया। शारजा में मुत्तहिदा अरब अमारात ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। इब्राहिम जादरान ने 63 और सिद्दीकुल्ला अतल ने 54 रन की इनिंग्स खेली। यूएई की जानिब से मोहम्मद रोहीद और सगीर खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 150 रन ही बना सकी। कप्तान मोहम्मद वसीम 67 रन के साथ नुमाया रहे। अफगानिस्तान की जानिब से शरफुद्दीन अशरफ और राशिद खान ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी क्रिकेटर आसिफ अली ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। आसिफ अली ने 21 एक रोज़ा और 58 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आसिफ अली ने पाकिस्तान के लिए आखिरी इंटरनेशनल मैच 2023 में खेला था। उन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में 3 निस सेंचुरियों की बदौलत 382 जबकि T20 इंटरनेशनल्स में 577 रन बनाए हैं। आसिफ अली ने हर अच्छे बुरे वक्त में हौसला अफजाई करने पर मद्दाहों, साथी खिलाड़ियों और कोचेस का शुक्रिया अदा किया। आसिफ अली का कहना है कि वो अपना शौक जारी रखते हुए डोमेस्टिक और लीग क्रिकेट खेलते रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बाएं हाथ के पेसर ने टेस्ट और वनडे पर फोकस के लिए T20 मुख्तसर फॉर्मेट के खेल से रिटायरमेंट का फैसला किया। 35 साल स्टार्क ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद से कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। स्टार्क डोमेस्टिक T20 लीग्स में शिरकत करते रहेंगे। मिचेल स्टार्क ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा से उनकी अहम तरजीह रही है। 2021 का T20 वर्ल्ड कप जीतना खास लम्हा था। मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 65 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 79 विकेटें हासिल की। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ ही बुलेटिन हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहिएगा।